Hello students, in previous video we have discussed about the meaning of non-profit organization, profit organization and difference between profit organization and non-profit organization. Now today we will discuss about the financial statement which will be prepared for the NPO. Following financial statement will be prepared for the NPO. Financial statement prepared for the NPOs. What are these? Number 1, receipts and payments account. Second one, income and expenditure account. Third one, balance sheet. These three statements will be prepared for the NPOs. Number 1, receipts and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. Now we will study in detail about receipts and payment account. Receipts and payments account. Let's start. What do you mean by receipts and payment account? When it is prepared, how it is prepared, what rules will be applicable for preparing receipts and payment account, we will study in this video. Receipts and payment account क्या होता है, कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से रूल अप्लीकेबल है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते टाइम. फर्स्ट पॉइंट, it is the summary of cash book. So it is prepared with the help of कैश बुक. रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, समरी है किसकी, कैश बुक की. विद द हेल्प ऑफ कैश बुक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. लेट्स सी विद द एग्जांपल हाउ इट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कैश बुक. In 11th class we studied about cash book, how it is prepared. Here I am giving example of cash book. With the help of cash book we will prepare receipts and payment account. Then first we see what is the format of receipts and payment account. Heading of the receipts and payment account. Receipts and payment account for the year ended. In cash book we record cash transaction which affect the cash book. In receipts and payment account we also record only those transactions which are related to cash and affect the cash balance. In receipts and payments account, debit side will be known as receipts side, receipts amount, and credit side will be known as payment side, amount. In 11th class we studied that
cash book always starts with the opening balance of cash. That's why receipts and payment account also started with the opening balance of cash book. In the cash book debit side, those transactions are recorded from the cash balance increases, and credit side those transactions are recorded from which cash decreases. हमने 11th में पढ़ा था कैश के डेबिट साइड में वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे बिजनेस में कैश बढ़ता है, और क्रेडिट साइड में वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे बिजनेस में कैश कम होता है. दैट्स व्हाई इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वी विल रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड एज रिसिप्ट, जिससे बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में कैश बढ़ता है. पेमेंट साइड में ऑर्गेनाइजेशन में कैश कम होता है. वी आर गिविंग एग्जाम्पल हाउ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर. इन कैश बैलेंस देयर इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 1st April 2019. Cash balance is opening balance is what is 1,40,000. Here we are giving example how receipts and payment account is prepared from the cash book. It is the example. ये क्या है? एक एग्जाम्पल है. हमने केवल इसमें कुछ महीनों का ही एज ए सैंपल आप लोगों को दिखाया है कि कैश बुक से हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है. जैसे कि हमने 1 अप्रैल ले लिया. 1 अप्रैल में ये ट्रांजैक्शन हुए इस मंथ में, उसके बाद मई में इतने ट्रांजैक्शन हुए, ऐसे ही जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारे हर महीने में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा. किसी में महीने में, सभी महीनों में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हुआ है. लेकिन हमने यहां आपको केवल बताने के लिए ही कैश बुक से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है. हमें पता है कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस, इसका मतलब लास्ट ईयर का लास्ट डे का क्लोजिंग बैलेंस है. तो इसका मतलब कैश बुक कहां से स्टार्ट होती है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक. दैट्स व्हाई रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑल्सो स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश. स्टार्टिंग 2 बैलेंस बीडी कितना है? 1,40,000. अब रिसिप्ट साइड में वही ट्रांजैक्शन लिखेंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन में कैश आएगा. हमें पता है कैश बुक के डेबिट साइड में वही ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं या वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिससे कैश इंक्रीज होता है. तो इसका मतलब हमने अप्रैल में कमीशन मिला है कितना? 10,000. इसका मतलब हमने मई में नहीं मिला, जून में मिला होगा, जुलाई में मिला होगा, अगस्त में मिला होगा, सितंबर में मिला होगा, अक्टूबर में मिला होगा. इसका मतलब कि हमें हर महीने या कुछ महीने छोड़ करके कमीशन मिला होगा. दैट्स व्हाई वी रिकॉर्डिंग कमीशन इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. टू कमीशन कितना? 10,000. तो केवल हमने एक दिखाने के लिए आपको लिखा है कि अप्रैल में कितना मिला है? 10,000. लेकिन पूरे साल में और भी तो कमीशन मिला होगा. उन सबको टोटल ऐड करके हमने कहा लिखना है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में. ओके. नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सब्सक्रिप्शन. हमें अप्रैल में सब्सक्रिप्शन मिला है कितने का? 30,000 का. मई में मिला है 30,000 का. ऐसे ही हमको जून में मिला होगा, जुलाई में मिला होगा, अगस्त में मिला होगा, सितंबर में, ऐसे पूरे साल भर में मिला होगा. तो इसलिए हम इसका भी टोटल कहां पे लिखेंगे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट साइड में. क्या लिख करके? टू सब्सक्रिप्शन. टोटल अमाउंट, पूरे साल की टोटल अमाउंट ऐड करके हमने यहां लिखनी है किसमें? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में. ऐसे ही अगला क्या दे रखा है? डोनेशन. डोनेशन कब मिला है हमें? अप्रैल में. कितने का? 20,000 का. मई में नहीं मिला तो इसका मतलब जून में मिला होगा, जुलाई में मिला होगा, मतलब पूरे साल में कभी ना कभी तो मिला ही होगा.
तो इसका मतलब कि हमने जितना भी डोनेशन मिला है पूरे साल का, हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट उसकी क्या करनी है, ऐड करनी है। और कहां पे लिखना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में टू डोनेशन। क्लियर माय पॉइंट? ओके। नाउ इन द कैश बुक डेबिट साइड देयर इज वन मोर पॉइंट, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो इसका मतलब कि पहले भी कहीं हमने न्यूज़पेपर बेचा होगा, महीने में हर महीने हम न्यूज़पेपर खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। इसलिए पूरे महीने का जितना भी, पूरे साल में जितने भी हमने न्यूज़पेपर बेचा, उनकी अमाउंट को हमने क्या करना है, टोटल करना है। और हमने कहा लिखना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कितना टोटल अमाउंट करना हमें पूरे साल में, चाहे वो कितना भी हुआ हो। अब टर्न आती है पेमेंट साइड की। पेमेंट में वही ट्रांजैक्शन लिखेंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन में कैश कम हो। तो इसका मतलब हमने कैश बुक में हमने दिखाया है कि सैलरी दी है 50,000 अप्रैल में, मई में दी है, ऐसे ही हमने जून में भी दी होगी, जुलाई में भी दी होगी, अगस्त में भी दी होगी, सितंबर में भी दी होगी। इसका मतलब कि हमने पूरे साल में सैलरी दी होगी हर महीने, तो उनका पूरी सैलरी के अमाउंट का हमने क्या करना है, टोटल करना है। और जो टोटल आएगा वो उसको हमने किधर लिखना है, पेमेंट साइड में बाई सैलरी। कितना, जितना भी टोटल जुड़े। अब हमें ये तो पता नहीं है कितना टोटल जुड़ेगा, हम क्या ले लेते हैं, एक्स वैल्यू। अब अगला ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है, रेंट। कितना, 20,000। अगले महीने भी दे रखा है रेंट 20,000। इसका मतलब कि हमने हर महीने रेंट दिया होगा, तो उसकी जो टोटल अमाउंट जोड़ के आएगी पूरे साल की, किसकी, रेंट की, वो हमने कहा लिखनी है पेमेंट साइड में, किसके, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के, बाई रेंट। कितना, अब हमें पता नहीं है कितना होगा, जो टोटल अमाउंट होगी वो हम क्या कर लेंगे, जोड़ करके ऐड करके लिख देंगे। अब ऐसे ही और ट्रांजैक्शन है, देखो है बाय बुक्स परचेज। इसका मतलब हमने फरवरी में हमने दिखा रखा है 50,000 का, लेकिन उससे पहले भी तो हमने कभी ना कभी खरीदी होगी। इसलिए जितनी भी बुक्स हमने पूरे साल में परचेज की है उनका क्या लिखना है, टोटल अमाउंट। कहां पे, पेमेंट साइड में, क्योंकि इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बाई बुक्स परचेज कितनी, भाई हमें नहीं पता पूरे साल में कितनी बुक खरीदी है। नाउ वी विल टोटल द अमाउंट ऑफ बोथ द साइड, रिसीप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे रिसीप्ट साइड का और पेमेंट साइड का। देयर विल बी ऑलवेज मोर बैलेंस ऑफ रिसिप्ट साइड कंपेयर टू पेमेंट साइड, क्योंकि रिसिप्ट साइड का बैलेंस हमेशा ज्यादा शो करेगा पेमेंट साइड के कंपेयर में, क्योंकि हम उतना ही पेमेंट कर सकते हैं जितना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैश अवेलेबल होगा। इसलिए इधर का हम एज ए एग्जांपल मान लेते हैं, टोटल आया 3 लाख। कितना आया, 3 लाख। इधर का भी हम मान लेते हैं कि टोटल तो दोनों का बराबर साइड होगी। कितना 3 लाख। अब हमने ऊपर का टोटल एक कैलकुलेट किया, तो हमें टोटल कैलकुलेट कितना होना चाहिए, 3 लाख। हमारा ऊपर का कितना आ रहा है, 1,80,000। तो कितने की कमी पड़ रही है, हमारे पास कमी पड़ रही है 1,20,000 की। वो हम पूरा करेंगे बाई बैलेंस सीडी। किससे, बैलेंसिंग फिगर से। कितना, 1,20,000। लेट्स सी, इट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक, व्हाट इज 1,20,000 एंड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस इज 1,20,000. Therefore, closing balance of cash book and receipts and payment account will be the same, and the opening balance of cash book and receipts and payment account will be the same. हमेशा जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कैश के ओपनिंग बैलेंस
जितना सेम होगा, जितना रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा वही क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस होगा. आई थिंक दिस पॉइंट हैज बीन क्लियर टू यू. नाउ सेकंड पॉइंट, receipts and payment account is a receipts and payment account is a real account because it is related to कैश. हमें पता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है. क्यों? क्योंकि इट इज रिलेटेड टू कैश. बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कैश. हमने देखा होगा जब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया तब ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड विच आर रिलेटेड टू कैश. दैट्स व्हाई रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कैश. देयरफॉर rule of real account will be applicable. What are those? First, debit what comes in, credit what goes out. That's why receipts and payment account कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट है. क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? कैश से रिलेटेड है. कौन से ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं? ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं. रूल कौन सा अप्लीकेबल है? रियल अकाउंट का रूल अप्लीकेबल है. वो क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. थर्ड पॉइंट, इट इज prepared on the cash basis. So if cash comes in the organization or cash goes out from the organization will be recorded. Non-cash transactions like as depreciation, outstanding expenses, accrued interest, etc. will not be recorded because it does not affect the cash in the organization. इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस. रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस पे. इफ कैश कम इन द ऑर्गेनाइजेशन और कैश गोज आउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिकॉर्डेड. अगर बिजनेस में कैश ऑर्गेनाइजेशन में कैश आएगा या ऑर्गेनाइजेशन से कैश जाएगा तभी इनको हम रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. इफ
there is non-cash transaction like depreciation, outstanding expenses, accrued interest. These are non-cash transaction because it does not affect the change in cash. Fourth point, it always started with the opening balance of cash and with closing balance of कैश. जो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो कहां से स्टार्ट होगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश. पीछे हमने एग्जांपल में किया था रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट कहां से स्टार्ट हुआ था? टू बैलेंस बीडी. कैश बुक के जो ओपनिंग बैलेंस था कैश का, वहीं से हमारा रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट हुआ था. और बंद क्लोज कहां पे हुआ था? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश. जो हमारा कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस था वही क्लोजिंग बैलेंस हमारा रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का था. तो इसका मतलब कि जो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो क्लोज हुआ है किससे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश. नेक्स्ट पॉइंट, इन दी डेबिट साइड ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, revenue nature and capital nature receipts both are recorded. रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में चाहे वो रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स हो चाहे वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स हो, दोनों रिसिप्ट्स को हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. फर्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय रिवेन्यू रिसिप्ट्स? रिवेन्यू नेचर रिसिप्ट हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था. रिवेन्यू नेचर रिसिप्ट्स क्या होती है? दोज रिसिप्ट्स विच आर रिकरिंग. रिकरिंग मीन्स रेगुलर in the nature. It means received by the organization regularly throughout the year is known as received रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट. वो रिसिप्ट्स जो हमें पूरे साल भर मिलती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट्स. नोट, रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट will be treated as income. जो रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट्स है उसको हम एज ए इनकम ट्रीट करेंगे इन एनपीओ. एग्जाम्पल, डोनेशन, कमीशन. कमीशन हमने हर मंथ पूरे साल भर मिलती रहती है. सब्सक्रिप्शन, ये भी हमें पूरे साल भर मिलती रहती है. एंट्रेंस फीस,
entry fees, etc. These are the example of revenue nature receipts. Subscription point will be discussed in next video. Here we can say that those receipts which are recurring in nature, जो हमें पूरे साल भर मिलती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू नेचर रिसीप्ट्स. और इनको हम एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या ट्रीट करेंगे? एज ए इनकम विल बी ट्रीटेड. सेकेंड वन, कैपिटल नेचर. कैपिटल नेचर receipt. Those receipts which are non-recurring in nature. It means these are not received regularly by the organization throughout the year, is known as कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स. वो रिसिप्ट्स जो हमें कभी कभार मिलती है, जो रिसिप्ट्स हमें कभी कभार मिलती है, उस रिसिप्ट्स को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स. नोट, कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स विल बी treated as liability. Treated as liabilities in NPO. It means capital nature receipts are those receipts which are not recurring in nature, जो हमें कभी कभार मिलती है, हमेशा नहीं मिलती. उन रिसिप्ट्स को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स. इन एनपीओ में हम कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स को क्या ट्रीट करेंगे? एज ए लायबिलिटी. एग्जाम्पल, डोनेशन. कैसा? स्पेसिफिक. लाइफ मेंबरशिप फीस. एटसेट्रा. स्पेसिफिक डोनेशन लाइक एज डोनेशन फॉर बिल्डिंग. किसी व्यक्ति ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक कमरा बनवाने के लिए कुछ पैसे दिए, एक कमरा बनवाने के लिए पैसे दिए, तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति हमेशा थोड़ी पैसे देता है. इसका मतलब कि ऐसा रिसिप्ट हमें कभी कभार मिलती है, इसलिए हम उसको किस नेचर की रिसिप्ट बोलते हैं? कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स. एंड it will be treated as liability for NPO. Now next point, in credit side, in the credit side of receipts and payment account, revenue nature and capital nature payment both will be recorded. हमने जब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया तब हम क्रेडिट साइड में क्या लिखा था? पेमेंट. तो इसका मतलब जो उसमें पेमेंट्स लिखी जाएगी वो रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है या कैपिटल नेचर की भी पेमेंट हो सकती है. तो अब बात आती है रेवेन्यू नेचर पेमेंट्स किसको बोलते हैं? रेवेन्यू नेचर पेमेंट्स. Those payments
which are recurring in the nature. It means regular in nature is known as क्या बोलेंगे उनको, रेवेन्यू नेचर पेमेंट. नोट, रेवेन्यू नेचर पेमेंट्स will be treated as expenses. रेवेन्यू नेचर पेमेंट्स कैसे ट्रीट होगी, एज ए एक्सपेंस इन एनपीओ. एग्जाम्पल, सैलरी, रेंट, etc. These will be treated as expense. Then what do you mean by revenue nature payment? Those payments which are recurring in nature. It means regular in nature is known as revenue nature payment, and revenue nature payment will be treated as expenses. Now capital nature payment. What is the meaning of capital nature payments? Those payments which are not recurring in the nature. It means not regular throughout the year is known as capital nature payment. Note, capital nature payment will be treated as assets. Example, furniture purchased, book purchased, sports equipment, etc. It means those payments which are not recurring in nature. जो पेमेंट रेगुलरली नहीं होती, कभी कभार होती है, साल में एक बार हो गई तो हो गई या नहीं भी हो सकती, ऐसी पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल नेचर पेमेंट. ऐसी पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल नेचर पेमेंट. और उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एसेट्स के टाइप में, एसेट्स के रूप में उनको हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे. एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज, बुक परचेज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज. इट मीन्स these are purchased in one time, not every month we are purchasing these items. Then that's why capital nature payment is treated as assets. In last point, in this account that cash which is received or paid between beginning of the year and last day of the year will be recorded. Like as
our year started from 1st April 2019 to 31st March 2020. So the cash received or paid between this time interval will be recorded whether it is related to last year, current year or next year. इट मीन्स रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में वो कैश लिखी जाएगी जो उस टाइम पीरियड के बीच में मिली हो या हमने पे की हो, चाहे वो कैश लास्ट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो. अगर हमने इस टाइम पीरियड के बीच में हमने कोई भी कैश ले ली या कोई भी कैश दे दिया तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा वेदर इट इज रिलेटेड टू लास्ट ईयर, करंट ईयर और द नेक्स्ट ईयर. थैंक यू फॉर द टुडे. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस video. Thank you.